Hello everyone. In this lecture we'll discuss about recursion. So here we'll discuss about recursion. So a recursion, we can say a function is calling itself. A function is calling itself. A function is calling itself to solve a particular problem. To solve to solve a particular problem is called recursion. Is called recursion. Okay, so what is recursion means a function is calling itself. A function that is calling itself to solve a particular problem is called recursion. Means एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा, राइट, और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट. Next point we can say solving a bigger problem in the small problem. Okay, in case of recursion, solving a bigger problem in term of small problem, in term of small problem. ओके, सो एक लार्ज प्रॉब्लम को क्या स्मॉल प्रॉब्लम्स में क्या करना है, सॉल्व करेंगे, राइट. नेक्स्ट थिंग, इन फंक्शन कॉलिंग एवरी टाइम ओनली पैरामीटर वैल्यू इज बीइंग चेंज. इन फंक्शन कॉलिंग every time only the parameter value is being changed. ओके, ओनली पैरामीटर वैल्यू इज बीइंग चेंज्ड. तो जब भी फंक्शन कॉलिंग होगी तो क्या होगा, पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी, राइट. नेक्स्ट थिंग, देयर मस्ट बी टर्मिनेशन कंडीशन इन केस ऑफ रिकर्जन, राइट. इन रिकर्जन there must be termination condition. Okay, there must be termination condition. Okay, this is what a recursion. Okay, tell me it is clear or not. Yes, till this part it is clear or not. Clear. Okay, fine. Next we will discuss about properties of recursion. Properties of recursion. So properties of recursion, first thing, it should have recursive step. It should have recursive steps. It should have recursive steps. Okay, it should have recursive steps. Second thing, there should be termination condition.
there should be termination condition. ठीक है, there should be termination condition. Third point, third we can say that from one function call to another function call, there should be change in the parameter value. Okay, so from one function call to another function call parameter value should be changed. Parameter value should be changed. ठीक है, तो जब भी क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग करेंगे, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कॉलिंग करेंगे, तो क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी दैट पैरामीटर वैल्यू मस्ट बी चेंज. तो वहाँ पे पैरामीटर वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी चेंज. राइट, मान लीजिए कि फंक्शन कॉलिंग में मान लीजिए t(5) कॉल किया जा रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, दैट मे बी t(4), after that t(3), and so on. So parameter value that should be changed. So these are some of the properties of recursion. One is there must be recursive steps. Another thing, there should be the termination condition, and parameter value should be changed. Now tell me, it is clear or not? Yes, it is clear or not? Okay, fine. Let's see the next one. Next is the recursive program. Now let's see the recursive program. रिकर्सिव प्रोग्राम. ओके, किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है, बीच में किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी और यू कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिकर्सिव प्रोग्राम. So let's see the program for the factorial, right? That will be the recursive program here. Let's see, it is f of n. ठीक है, f of n. After that, if n is less than equal to 1, n is less than equal to 1, return 1. Return 1. Okay, n is less than equal to 1, return 1. Else return n into f of n minus 1. Right, else return n of f of n minus 1. Okay, so what is happening here, this is what function calling. Now in this one, what is happening here, it is the definition for the function. If n is less than equal to 1, return 1. else रिटर्न n इंटू n क्या रहेगा, एज इट इज, और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में एक कॉल और कर दी जाएगी. राइट, f of n minus 1, और इस कॉल में क्या होगा, इट विल चेंज द पैरामीटर. राइट, पैरामीटर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. यस, सबको प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस इज क्लियर और नॉट?
क्लियर क्लियर ओके। सो जिनकी ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेक हो रही है, इट मीन्स योर नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, स्पीड स्लो है आई थिंक, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज बाकी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। You can try for you can reconnect and after that you can continue, right? अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है तो रिकनेक्ट करके देख लो, अदरवाइज अगर बिल्कुल क्लियर नहीं है आई विल सेंड द लेक्चर ऑल्सो। Okay, so here this one is what, this is the termination condition। ये वाली क्या है, रिटर्न वन, n is sorry here it is n is less than equal to 1 then return 1, right? that is the termination condition। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, विल गो टू एल्स पार्ट, देन रिटर्न n इंटू एफ ऑफ n माइनस वन, अगेन फंक्शन कॉल, और पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, चेंज हो जाएगी। ओके, हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग, लेट्स सी। So what will happen, initially n equal to 4, assume n equal to 4, then what will happen, firstly we'll check for the condition। okay, so if it is n equal to 4, क्या करेंगे, लेट मी से हियर इट इज 1, हियर इट इज 2। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, so in the first statement what will happen, we'll check for the condition n is less than equal to 1, yes n is less than equal to 1 or not, 4 is less than equal to 1, condition is false। कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करेंगे, विल गो टू एल्स पार्ट, दैट इज रिटर्न, रिटर्न n ऑफ n इंटू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सेकेंड स्टेप में, रिटर्न n इंटू एफ ऑफ n माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि n क्या है यहाँ पे 4, 4 इंटू एफ ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन मीन्स एफ ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर से फंक्शन कॉल हो गई है एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन एफ ऑफ 3 का करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, अगेन चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या है, दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 और नॉट, कंडीशन इज फॉल्स। इफ कंडीशन इज फॉल्स, गो टू द एल्स पार्ट, मीन्स सेकंड स्टेटमेंट, हियर इट इज रिटर्न n ऑफ एफ ऑफ n माइनस वन। इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 3 इंटू एफ ऑफ n माइनस वन, n is 3, so 3 minus 1 that is 2, f of 2, right? अगेन फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल फिर से हो रही है। इस केस में क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, that n is less than equal to 1 or not, 2 is less than equal to 1 or not, condition false। if condition is false, we will go to the second step, in second step it is n of f of n minus वन, तो n क्या रहेगा, n is 2 into f of 1। okay, f of 1, then again function call, we'll check for the first one, condition। so here what is the condition, 1 is less than equal to 1, condition is true, 1 is less than equal to 1, condition true। अगर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1। तो इसका मतलब ये जो f ऑफ 1 है, जस्ट ए मिनट, यस, यहाँ पे ये जो f ऑफ 1 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1। अब क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम 2 इंटू 1, दैट बिकम 2। इसका मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2। अब 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब क्या हो गया, 6। तो यहाँ पे ये जो 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ सॉरी ये वाला, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 6। अब क्या करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 का मतलब क्या आ गया, ये जो फंक्शन कॉल हुई थी एफ ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे 4 था, एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ 4 इक्वल टू इट इज 24।
right? And this is nothing but factorial of the 4, right? Factorial of 4 क्या होता है? Factorial of 4 factorial, that is equal to 4 into 3 into 2 into 1, that is 4 3 is 12, 2 is 24, right? So finally result is 24. Now tell me it is clear or not. ठीक है, तो ये क्या था, फैक्टोरियल का फंक्शन था, और ये कैसे एग्जीक्यूट होगा उसका फ्लो हमने देखा कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। Clear, okay, okay, fine. So this is what the recursive program and their execution, इस टाइप से ये क्या होगा, execute होगा। और next is a recurrence relation. Then what will be the recurrence relation for this one? Let's see the recurrence relation. So here we can say f of n is a function, f of n is a function, then we can say it will return 1, it will return 1 if n is less than equal to 1. If n is less than equal to 1, it will return 1. Else क्या होगा, else it is into f of n minus 1, f of n minus 1 if n is greater than 1, n is greater than 1. This is what the recurrence relation. तो ये क्या बन जाएगा, रिकरेंस रिलेशन। कैसे आया, हमें पता है ये टर्मिनेशन कंडीशन है, दैट 1 ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 1 इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे राइट। तो n इज लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स इट विल रिटर्न 1। एल्स क्या होगा, एल्स n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1 इफ n इज ग्रेटर देन 1। अगर n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये फंक्शन कॉलिंग करेगा, फिर से रिकर्सिव कॉल करेगा, राइट। नाउ टेल मी दिस रिकरेंस रिलेशन इज क्लियर और नॉट। Yes, it is clear to all or not? Okay, clear. Now after this one, we can find out the time complexity of this program. How to find out the time complexity of this program? By solving this recurrence relation, right? By solving this recurrence relation, we can find out the time complexity. Then how to solve the how to solve this recurrence relation? इस recurrence relation को कैसे solve करेंगे, right? So we'll see the recurrence relation solving. Right, now we'll discuss about recurrence relation solving.
recurrence relation solving. Recurrence relation solving. So there are three methods to solve the recurrence relation. First one is substitution method. First one is substitution method. One is substitution method. Second one, and that is the recursive tree method. Recursive tree method. ठीक है. Second one is the recursive tree method. Third is the master method. Master method or master theorem. ठीक है. Third one is the master method. These are the three methods to solve the recurrence relations, right? To solve the recurrence relations. So firstly we'll discuss about the substitution method to solve the recurrence relations. So let's see the substitution method firstly. Substitution method. So what is substitution method? So in this, what will happen? Substitute the given function. Substitute the given function. Substitute the given function again and again. Again and again until again and again until the given function is removed. The given function is terminated. We can say terminated. Given function is terminated or removed. We can say terminated. Right? We'll substitute the given function again and again until the given function is terminated. Right? Is called substitution method. Is called substitution method. Okay, that is called the substitution method. Now we'll take the example and understand in better manner how to substitute and what is the story. Okay, so till this part it is clear. Okay, clear, fine. Now let's see the recurrence relation and we'll try to solve that recurrence relation using the substitution method. Okay, so here this is the recurrence relation. Assume it is T of n. It is 1 if n equal to 1, T of n minus 1 plus n if n is greater than 1. If n is greater than 1, this is the recurrence relation given that T of n if it is a T of n, it will return 1 if n equal to 1. Otherwise if n is greater than 1, it will return this one. ठीक है, तो इसको कैसे solve करेंगे? Let's see. So this is what the termination condition.
ये वाली क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है, और ये क्या है, रिकर्सिव कॉल है यहाँ पे, राइट। दिस इज व्हाट द रिकर्सिव कॉल. Now we'll substitute the value and find out the solution. Let's see. Assume that, okay, here it is given that t of n equal to t of n minus 1 plus n, राइट। और जिसके साथ भी t लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है, रिकर्सिव कॉल हो रही है, राइट। ये जो t जिसके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए रिकर्सिव कॉल, ठीक, रिकर्सिव कॉल होगी यहाँ पे। नाउ रिकर्सिव कॉल में क्या कॉल हो रहा है, दैट इज n माइनस वन, मीन्स इन दिस केस वेर एवर यू गेट n यू पुट n माइनस वन, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेन फंक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे t ऑफ n दैट इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस वन प्लस n, राइट। तो इस केस में क्या हो रही है, ये वाली कॉल हो रही है ना, t ऑफ n माइनस वन, राइट। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ये एज इट इज है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, इस वाले फंक्शन में यहाँ पे क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूट कर देना है टी के साथ, सॉरी टी के साथ बात करें तो वहाँ पे क्या कर देना आपको, जहाँ पे, सॉरी, ये t ऑफ n माइनस वन हो रहा है ना, इसका मतलब जहाँ पे भी n मिलेगा वहाँ पे क्या कर देना है, n माइनस वन सब्सटीट्यूट करना है, राइट। जहाँ पे भी n होगा वो n माइनस वन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे n है, राइट। सो इट इज t ऑफ n माइनस वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n माइनस वन दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे n की जगह, इस n की जगह अगर क्या करें, इस n की जगह क्या करेंगे, n माइनस वन पुट करना है ना, तो t ऑफ n माइनस वन ये दे रखा है, इस n की जगह क्या करना है, n माइनस वन पुट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया जाएगा, ये t ऑफ n माइनस वन माइनस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, t ऑफ n माइनस टू, राइट। क्योंकि ये माइनस और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और उसके बाद ये भी माइनस हो गया, माइनस टू आ गया, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ n माइनस टू, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, t ऑफ n माइनस टू, प्लस में क्या होगा, इस n की जगह भी क्या करना है, n माइनस वन पुट करना है, तो n की जगह क्या करना है, n माइनस वन पुट कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या हो गया, तो कंप्लीट कर लिया हमने, t ऑफ n में क्या कर दिया, n माइनस वन पुट कर दिया, तो यहाँ पे n माइनस वन हो गया, तो यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस वन हो गया। अब ये वाला n था, ये तो एज इट इज था, इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की हमने, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में n आ जाएगा यहाँ पे, ओके। ये एज इट इज आ जाएगा। नाउ टेल मी टिल दिस पार्ट इट इज क्लियर और नॉट। यस, okay. Now in the next step what will happen, let's see। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे इसके साथ टी है, टी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कॉलिंग हो रही है, तो पैरामीटर वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, दैट इज n माइनस टू। नेक्स्ट टाइम पैरामीटर वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n माइनस टू। इसका मतलब ये जो मेन फंक्शन था यहाँ पे ये वाला, इसमें क्या पुट करना है, n की जगह n माइनस टू पुट कर देना है, राइट। n की जगह क्या पुट कर देंगे, n माइनस टू पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं फिर, ठीक है। तो ये एन, टी ऑफ एन था, इसकी जगह एन माइनस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ एन माइनस टू, एन माइनस वन नहीं, एन माइनस टू, यस एन माइनस टू आ जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन माइनस वन है, और पुट क्या करना है, एन की जगह एन माइनस टू पुट कर देंगे, एन माइनस टू। जब एन माइनस टू पुट करेंगे और माइनस में क्या है, वन है, तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब एन माइनस थ्री हो जाएगा।
इट बिकम टी ऑफ एन माइनस थ्री, राइट। तो यहाँ पे n माइनस थ्री हो गया। उसके बाद क्या करना है, और अनदर थिंग, यहाँ पे कॉलिंग ये वाली कर रहा है ना, यहाँ से कॉल हो रही है ना, ये पोर्शन एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस टू हो गया, और इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस टू, एन माइनस टू। उसके बाद क्या हो गया, ये पोर्शन एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, इट इज एन माइनस वन, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, प्लस एन, ठीक है। ओके, ये स्टेप भी क्लियर है, इज इट क्लियर? ओके, क्लियर, फाइन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहाँ से कॉलिंग हो रही है ना, ये वाली कॉलिंग हो रही है। तो इसका मतलब टी ऑफ एन में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एन माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे, टी ऑफ एन में एन माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड का पार्ट पोर्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। टी ऑफ एन माइनस वन था ये, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये, कब तक, लेट मी से के टाइम्स, ऐसा कब तक चलेगा, के टाइम्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू टी ऑफ एन माइनस के, राइट। एक टाइम के बाद यहाँ पे थ्री था, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसे ही होता होता क्या हो जाएगा, एन माइनस के तक जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे n माइनस के तक गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे टू है, मतलब एक वैल्यू लेसर रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस के माइनस वन, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे टू था, यहाँ पे उससे एक वैल्यू लेसर हो जाएगी, राइट। तो लेसर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इट इज एन माइनस के माइनस टू, ठीक है, एन माइनस के माइनस टू। ओके, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या बच जाएगा, ये एन के माइनस वो हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये एन बच जाएगा यहाँ पे, राइट। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? ओके, क्लियर, फाइन। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमें ये पता करना है कि k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर k, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखना है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, n माइनस के, ये यहाँ पे n माइनस के है ना, ठीक है, n माइनस के, ये किसके इक्वल पुट कर देंगे, लास्ट में वन के इक्वल पुट कर देंगे, बिकॉज जब n इक्वल टू वन हो जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा, वन करेगा। ये क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है, राइट। यही है ना टर्मिनेशन कंडीशन। तो n माइनस के दैट इज इक्वल टू वन, अगर ये वन के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट है k इधर चला जाएगा, n माइनस वन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस वन हो गया और यहाँ पे k हो गया। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, k इक्वल टू n माइनस वन। तो k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली कि k क्या होगा, दैट इज n माइनस वन। नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ k हियर, k की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट इज t ऑफ n माइनस वन प्लस n माइनस वन, के की वैल्यू क्या है, n माइनस वन, n माइनस वन माइनस वन, ओके, प्लस n माइनस के की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस वन, और माइनस में क्या, टू, एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, n माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, t ऑफ वन।
यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल, और ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़ 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा ये वाला n, राइट, ये n हो जाएगा। अब जब भी क्या होगा t ऑफ 1 होगा, t ऑफ 1 मतलब n की जगह क्या आ जाए 1 आ जाएगा, तो क्या होगा दैट रिटर्न 1, ठीक है। जब n क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1, तो क्या रिटर्न करेंगे 1 रिटर्न करेंगे। इसका मतलब t ऑफ 1 क्या हो गया दैट इज 1। इसको रब कर देता हूँ। नाउ t ऑफ 1 सॉरी, t ऑफ 1 क्या हो जाएगा दैट इज 1, ओके सॉरी, t ऑफ 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, आफ्टर दैट इट इज 2, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 4 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो 1 टू n नंबर्स का क्या करना है, सम करना है, तो इसका सम क्या हो जाएगा दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे दैट इज n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2, राइट। ये 2 क्या है कांस्टेंट है, इग्नोर कर देंगे। इन दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है एन स्केयर, फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्केयर, राइट। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट।